Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So this is the playlist in which I am going to discuss something about previous year AFCAT questions and model question paper which is being issued by AFCAT. So before going further, please don't hesitate to contact me in the comment box. I have given my personal WhatsApp number in the description, so please don't hesitate to contact me personally even. Alright, and also I have given the PDF of the question paper. You can appreciate our hard work by clicking the subscribe button and sharing it with most of the people who are defense aspirant so that they can also solve and they can also clear it. So in this video we are going to discuss about So today we are going to solve AFCAT 2 2015 का main question paper. So let us start. 52nd question ये कहता है कि a boat travels upstream from B to A and downstream from A to B in 3 hours if the speed of the boat in still water is 9 km per hour and the speed of current is 3 km per hour. The distance between A and B is. So ये question जो है वो boats and stream का question है. Boats and stream का question है. So let us see how to approach this question. Solution क्या होगा कि स्पीड ऑफ बोट क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. नाउ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, इन डाउनस्ट्रीम दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, ठीक है, 9 + 3 इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, और वही स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, 9 - 3 इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. नाउ हमको डायरेक्ट फॉर्मूला है टाइम टेकन कितना था टोटल, T1 + T2 इज इक्वल्स टू 3 आर, एंड हम डिस्टेंस को लेट करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डी. ऑलराइट, सो उसके बाद हमको सीधा फॉर्मूला है टाइम टेकन इज T1 + T2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो डी अपॉन दोनों का स्पीड का प्लस 12 प्लस डी अपॉन 6, ठीक है. सो T1 + T2 इज 3, और इसमें से 1/6 कॉमन लिया, D/6 कॉमन लिया मैंने, सो क्या हो जाएगा 1/2 + 1, सो इट कम्स आउट टू बी 6 × 3 = 18 इज इक्वल्स टू D इंटू 3/2, 3 × 1 = 3, 3 × 6, और जो D आएगा वो मेरा आएगा 12 किलोमीटर. Alright, so the answer is 12 kilometer, D option, ठीक है. So the 53rd question is like this: a steamer moves with a speed of 4.5 km per hour in still water to a certain upstream point and comes back to the starting point in the river which flows at 1.5 km per hour. The average speed of steamer for the total journey is. तो ये भी स्पीड बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है. सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. सोल्यूशन इस स्पीड ऑफ स्टीम दे रखा है, स्पीड ऑफ स्टीम इज 4.5 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये स्ट्रीमर है, ठीक है, और ये स्ट्रीम इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ स्टीमर अपस्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4.5 - 1.5 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर. इसको हम V1 दे देते हैं, ठीक है, V1, और स्पीड ऑफ स्टीमर इन डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4.5 + 1.5 दैट कम्स आउट टू बी 6 किलोमीटर पर आवर, इसको हम V2 दे देते हैं. नाउ वी नो बाय फॉर्मूला कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड
इज इक्वल्स टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ठीक है। सो 2 इंटू 6 इंटू 3 बाय 9, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, सो इट कम्स आउट टू बी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो द एवरेज स्पीड इज 4 किलोमीटर per hour. This is the 54th question, which says is A can do 1/2 of a piece of work in 8 days while B can do 1/3 of the same work in 8 days. In how many days can both do it together? So ये work and time का question है, work and time का question है, और ये 1/3 है, ठीक है, 1/3. So let us see how to approach this question. अभी A's work of 8 day, A's work of 8 day कितना है 1/2, ठीक है। Therefore A's 1 day work कितना हो जाएगा 1/2 into 8, that comes out to be 1/16. all right. Similarly B's work of 8 days is 1/3, ठीक है। So B's 1 day work कितना हो जाएगा 1 day work is 1/3 into 8 comes out to be 1/24, ठीक है। Now उन्होंने क्या बोला है कि 1 day work of A and B कितना हो जाएगा, A and B 1/16 plus 24, 1/16 plus 1/24, so it comes out to be 5/48, ठीक है, 5/48. So the required days would be इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। ये 1 day का वर्क था, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपको टोटल डेज, तो 5/8, इट कम्स आउट टू बी 9.6 days. all right, so the answer is 9.6, A option. So this is the 55th question, which says is A does 1/2 as much work as B and C does 1/2 as much work as A and B together. If C alone can finish the work in 40 days, then together all will finish the work in, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन, सबसे पहले क्या दे रहा है, सीज वर्क कितना 40 डेज, इट रिक्वायर्स 40 डेज। सो सीज वर्क इन 1 day, वर्क इन 1 day कितना हो जाएगा, दैट इज 1/40, ठीक है। अभी ये याद रखना इस लाइन में क्या दे रखा है, सी डज हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर, मतलब ये हाफ है, ठीक है। सो ए प्लस बी वर्क इन 1 day कितना हो जाएगा 1/40 इंटू 2, क्यों, क्योंकि C डज 1/2 एज मच वर्क एज A एंड B टुगेदर, A एंड B का जो टुगेदर है इससे आधा करता है ये, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/20, सो इट कम्स आउट टू बी 1/20. ऑल राइट, नाउ देयरफॉर 1 day work ऑफ A, B एंड C टुगेदर क्या हो जाएगा 1/40 प्लस 1/20, so it comes out to be 20 plus 40 upon 20 into 40, so it comes out to be 60 upon 20 into 40, so 4 से 4 cancel, 0 से 0 cancel, so 2 10s are 2 3s are, so it comes out to be 3/40, ठीक है। so therefore required days is 40/3. इसका रेसिप्रोकल पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसका रेसिप्रोकल होगा, सो इट कम्स आउट टू बी 13 1/3 days. So the answer is 13 1/3 days. So this is the 56th question, which says is a train 150 meter long is running with a speed of 68 km per hour. In what time will it pass a man who is running at 8 km per hour in the same direction in which the train is going? So this is the question, problem based on trains, based on train का question है, ठीक है। So let us see how to approach this question. सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रेन क्या गिवन है अपने को, लेंथ ऑफ
ट्रेन इज इक्वल टू 150 मीटर, ठीक है। सबसे पहले हमको ये मीटर है, ठीक है, 50 मीटर दे रखा है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दे रखा है 68 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऑप्शंस भी सेकंड्स में है और मुझे लेंथ भी मीटर में दे रखा है। तो 68 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि ये मैंने पहले बता चुका हूँ, क्योंकि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बड़े से मैं छोटे की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे 5 ऊपर आएगा, ठीक है। और अगर मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होता था तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करता था, ठीक है। सो ये है अभी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने का तरीका, ठीक है। तो ये आ गया मेरा अप्रॉक्सीमेटली 18.89 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नाउ स्पीड ऑफ मैन जो कि हमको वो भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर, उसको मुझे चेंज करना है। तो 8 × 5/18 सेम, सो इट कम्स आउट टू बी 2.22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैंने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ऑलराइट। नाउ रिलेटिव स्पीड, अभी रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि दोनों एक साथ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 18.89 माइनस 2.22, सो इट कम्स आउट टू बी 16.66 मीटर पर सेकेंड। अभी ये मेरी रिलेटिव स्पीड हो गई, ठीक है। ना मुझे चाहिए, अभी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड, ठीक है। तो लेंथ कितना है 150 बाय 16.66, सो इट नियरली कम्स आउट टू बी 9 सेकेंड्स, क्योंकि मीटर पर सेकेंड्स पे है, ऑलराइट। सो द आंसर इज अपना सी ऑप्शन, 9 seconds. So this is the 57th question, which says is a train covers a distance of 12 km in 10 minutes. If it takes 6 seconds to pass a telegraph post, the length of the train is. So ये भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स का क्वेश्चन है, ठीक है। बेस्ड ऑन ट्रेन्स का सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, इस चैप्टर में। सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन इज ट्रेन covers 12 किलोमीटर मीन्स 12,000 मीटर्स, ठीक है। इन फॉर टाइम 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मतलब 10 × 60 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि मुझे मीटर पर सेकेंड्स का चाहिए, मीटर पर सेकेंड्स का, तो 600 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या हो जाएगी मेरी, स्पीड इज इक्वल टू 12,000 डिवाइड बाय 600, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो 620 सो इट कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ इट टेक्स 6 सेकेंड टू पास अ टेलीग्राफ पोस्ट, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, ठीक है। सो नाउ ट्रेन टेक्स 6 seconds to pass a telegraph post, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है अपना, ना यहाँ पर डिस्टेंस की जगह आएगा लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 6। अभी मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, ठीक है। तो लेंथ कम्स आउट टू बी 6 × स्पीड क्या है हमने 20, तो 6 to 120 मीटर, 120 मीटर इज द राइट आंसर, ऑलराइट। सो दिस इज द 58th क्वेश्चन, विच सेज इज A salary is 50% more than B's salary. How much % is B's salary less than A's? So ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, ऑलराइट। सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। इसको हम एज्यूम करके करेंगे, ठीक है। लेट B's सैलरी बी 100 रुपीज़, ठीक है। सो A's सैलरी कितनी हो जाएगी, A सैलरी इज गिवन एज 50% मोर देन B's, तो 50% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 50 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। 50 ज़्यादा है उससे, तो A सैलरी कितना हो जाएगा, A सैलरी कितना हो जाएगा 50 + 100, सो इट कम्स आउट टू बी ₹150, ठीक है। ये A सैलरी और B सैलरी हमने इतना एज्यूम किया है, ठीक है। ना क्वेश्चन में क्या पूछा है
कि हाउ मच परसेंट ऑफ बी सैलरी लेस देन एस, तो कितना कम है, हाउ मच लेस, 50 रुपीज लेस इज बी सैलरी देन एस, ठीक है, देन एस, देयरफॉर 50 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, ठीक है, ये परसेंटेज का फॉर्मूला, 51 से 53 से 3 1 333.33 परसेंटेज, सो द आंसर इज 33.33 percentage. All right. So this is the 59th question, which says is the price of an item is decreased by 25%. What percent increase must be done in new price to get the original price? So ये भी profit and loss का question है, profit and loss का question है, ठीक है. So let us see how to approach this question. The price of an item is decreased by, let the price, हम let the price करेंगे, ठीक है, let the price of an article be 100 rupees, ठीक है. The price of an item is decreased by 25, it is decreased by 25%, तो मतलब तो आर्टिकल की प्राइस कितनी होगी, therefore प्राइस becomes 75 रुपीज़, क्योंकि 25% डिक्रीज हो गई, तो 100 का 25% क्या होता है 25 रुपीज़, तो 25 रुपीज़ कम हो गया 100 से, तो 75 रुपीज़ आया, ठीक है, उसका ओरिजिनल प्राइस. नाउ क्वेश्चन क्या गिवन है कि व्हाट परसेंटेज इंक्रीज मस्ट बी डन इन द न्यू प्राइस टू गेट द ओरिजिनल प्राइस. अभी ओरिजिनल प्राइस के लिए आई शुड हाइक 25 रुपीज़ मोर इन दिस प्राइस, ऑलराइट, मुझे 25 रुपीज़ मुझे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो वो है 25, और मेरा अभी प्राइस कितना था 75 इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा, तो 25 1 से 25, 25 3 से 3 1 से 33.33, तो मतलब मुझे 33 इस 75 रुपीज़ में 33.33% ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा उस प्राइस का, सो दैट मुझे 100 रुपीज़ का मिल सके. ऑलराइट, समझना. सो द ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज 33.33. Anmol, this is the 60th question, which says is Anmol sold 2 items for 1000 rupees each. On one he gained 10% and on other he lost 10%. How much did he gain or loss in the whole transaction? So ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, एंड मैंने ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये मैंने बता रखा है, ठीक है. सो आई विल नॉट बी गोइंग विद द कन्वेंशनल अप्रोच. इसका सीधा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100% इंक्रीज और डिक्रीज. अगर पॉजिटिव में आया तो इंक्रीज, ठीक है, इसका आंसर जो पॉजिटिव में आया तो इंक्रीज, ठीक है, और नेगेटिव में आया तो डिक्रीज, ठीक है. सो नाउ लेट अस सी, सबसे पहले उसको इंक्रीज हुआ 10% का, मतलब ए इज इक्वल्स टू प्लस 10%, ठीक है, एंड उसके बाद उसको लॉस हुआ माइनस, तो दैट इज माइनस 10%. तो ए और बी में पुट कर दूंगा, तो 10 माइनस 10 प्लस 10 इंटू माइनस 10 अपॉन 100. सो 10 से 10 कैंसिल, सो माइनस 100 अपॉन 100, सो इट इज माइनस 1%. सो माइनस क्या इंडिकेट करता है, डिक्रीज यानी लॉस, ठीक है, और या लॉस ऑफ 1%, तो आंसर इज लॉस ऑफ 1%, दैट इज बी ऑप्शन. ऑलराइट. So this is the 61th question, which says is if the SP is doubled, the profit triples, the profit percentage is. So ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है. नाउ आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस बाय टैबुलर फॉर्म, ठीक है. तो सबसे पहले इसको CP SP एंड प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट लिखते हैं ऐसा, ठीक है. सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं CP इज इक्वल्स टू X एंड SP इज इक्वल्स टू Y. तो प्रॉफिट कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस SP माइनस CP होता है, ठीक है, कितने का बेचा माइनस उसको कितने का पड़ा, तो Y माइनस X, ठीक है, तो ये हो जाएगा. अभी देखो कंडीशन क्या है, इफ द SP इज डबल्ड, SP मतलब ये, तो 2X, ठीक है, SP इज डबल्ड बट CP रिमेन्स द सेम. ऑलराइट, CP के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, अभी प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2X, सॉरी ये Y है, ठीक है, Y 2Y माइनस X, ठीक है, 2Y माइनस X प्रॉफिट हो जाएगा. अभी और एक चीज क्वेश्चन में दे रखा है कि द प्रॉफिट ट्रिपल्स, ये कंडीशन जब होता है तो प्रॉफिट ट्रिपल्स हो जाते हैं, तो प्रॉफिट ये जो है ट्रिपल हो जाता है 3Y माइनस X, ठीक है. ना ये दोनों मेरा इक्वल है, ऑलराइट. सो मैं इन दोनों से एक इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा, तो दैट इज 2Y माइनस X इज इक्वल्स टू 3Y माइनस X, दैट इज 2Y माइनस X इज इक्वल्स टू 3Y माइनस 3X, ठीक है. सो उधर चलेगा 3X माइनस X इज इक्वल्स टू Y,
तो y कम्स आउट टू बी 2x, ठीक है। ये मेरा एक इक्वेशन है, ठीक है। नाउ आई नो दैट प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, ऑलराइट। सो अब देखो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट क्या है मेरा, इतना y माइनस एक्स था प्रॉफिट, तो y माइनस एक्स अपॉन CP क्या है मेरा x, ये वाला, ठीक है, इंटू 100। अभी y की वैल्यू हमने अभी निकाली 2x माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100, सो इट कम्स आउट टू बी x by x into 100, that is 100%. Answer is 100%. So the option is C. Alright. So this is the 62nd question, which says is a man lent a sum of money at the rate of simple interest of 4%. If the interest for 8 years is 340 rupees less than the principal is. So simple interest का question है जो कि बहुत simple है. Alright, simple interest. So let us see. सबसे पहले उन्होंने क्या दे रखा है, so सबसे पहले assume करेंगे let the principal amount be x रुपीज, ठीक है, x रुपीज। रेट क्या दे रखा है, रेट इज इक्वल टू 4% एंड टाइम इज 8 years, ठीक है। नाउ और इंटरेस्ट क्या बोल रखा है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 340 लेस देन द प्रिंसिपल, p माइनस 340, ऑलराइट। सो नाउ हमको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100 होता है, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है, p माइनस 340 इज इक्वल टू p का p रह जाएगा, r क्या है हमारा 4 इंटू 8 बाय 100, ठीक है। सो 100p माइनस 34000 इज इक्वल टू 8 4 द 32p, सो 100 माइनस 32p इज इक्वल टू 34,000 सॉरी, सो इट कम्स आउट टू बी 68p is equal to 34,000, so p comes out to be 34,000 divided by 68, so it is rupees 500। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो हमारा 500 है, ठीक है। सो द आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। So this is the 63rd question, which says is a sum was invested for 3 years at simple interest at a certain rate. Had it been invested at 4% higher rate of interest, it would have fetched 600 rupees more. The sum is, so ये भी simple interest का question है, but not so simple, ठीक है। Don't worry, I am here. Interest. So let us see how to approach this question, ठीक है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल इज P, ठीक है, प्रिंसिपल इज P, ठीक है, वही निकालना है अपने को। रेट को हम R1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एंड टाइम जो दे रखा है हमारा 3 years का दे रखा है, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, प्रिंसिपल यहाँ पर भी P है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू P। अभी रेट क्या बोल रखा है उन्होंने, हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 4% हायर रेट, मतलब R1 प्लस 4, ठीक है, ये परसेंटेज हायर रेट पे, इट वुड हैव फेच्ड 600 रुपीज मोर, मतलब टाइम भी यहाँ पर 3 years है, ठीक है। इट वुड हैव फेच्ड 300 रुपीज मोर। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 600 रुपीज होएगा, क्योंकि 600 ज्यादा देता है अगर इस रेट पे उन्होंने किया तो, ठीक है। सो ना यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट 1 कौन सा रखना है, सिंपल इंटरेस्ट 2 कौन सा रखना है। सिंस इट इज ऑल द क्वांटिटीज आर सेम, ठीक है, ये क्वांटिटी सेम है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट ये ज्यादा बढ़ा देगा, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा देन 1, और ये 1 हो जाएगा, ऑलराइट। ये मॉड्यूलस का है, आप मॉड भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तब जाके मुझे 600 रुपीज देगा, ठीक है। तो P इंटू R1 प्लस 4 इंटू टाइम 3 अपॉन 100 माइनस P इंटू R1 इंटू 3 बाय 100 इज इक्वल टू 600 रुपीज। सो 100 कॉमन निकाल के मैं उस तरफ भेज दूं, सो 3P R1 प्लस 4 माइनस 3P R1 इज इक्वल टू 600 इंटू 100 इज 60,000, ठीक है। सो 3P R1
प्लस 4 3 ज़ा 12p माइनस 3p r1 इज इक्वल टू 60,000. सो 3p r1 कैंसिल हो जाएंगे. p इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाई 12. तो 5,000 रुपीज़ इज द प्रिंसिपल अमाउंट. सो द आंसर इज 5,000. सी ऑप्शन. ठीक है. So this is the 64th question, which says is the average weight of 50 boys in class is 45 kg. When one boy leaves the class, the average reduces by 100 gram. Find the weight of the boy who left the class. So ये question है averages का. ठीक है, averages का. So let us see how to approach this question. I will be approaching this question like a tabular form, क्योंकि उसमें ज़्यादा आसान हो जाता है. ठीक है. सबसे पहले मेरे को before going for table I want to mention one thing is the average reduces by 100 gram. 100 ग्राम मतलब 0.1 kg. ठीक है. मैं ये एक चीज़ कन्वर्जन करके आगे बढ़ना चाहता हूँ. ठीक है. सो नाउ सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले टोटल बॉयज़ कितने थे? 50 बॉयज़. ठीक है. केस 1 और केस 2. ठीक है. केस 1 एंड केस 2 लूँगा मैं. 50 बॉयज़ थे सबसे पहले टोटल. ठीक है, टोटल. और यहाँ पर कितने हो गए? एक बच्चा छोड़ दिया तो 49 बॉयज़ हो गए. ठीक है. अभी एवरेज कितना बोला है? 50 बॉयज़ का एवरेज 45 kg. और यहाँ पर क्या बोला है? तो एवरेज कितना बोला है? 0.1 kg कम हो जाएगा. तो 45 माइनस 0.5 45 माइनस 0.1 इज 44.9 हो जाएगा. ठीक है, इसलिए 44.9 यहाँ पर आया. ठीक है. नाउ सम कितना होगा? सम अब हमको मालूम है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी है. ठीक है. तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू टोटल. ठीक है, इज टू सम हो जाता है. ठीक है. एवरेज इंटू टोटल इज टू सम. तो यहाँ पर सम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो 50 इंटू 45 विच कम्स आउट टू बी 2250. ठीक है, 2250 आ जाएगा. और यहीं पर सम कितना हो जाएगा इन लोग का? 2200.1. ठीक है, सम हो जाएगा kg. ठीक है, kg. अभी पहले इतना था, एक छोड़ने के बाद इतना हो गया. तो वो एक छोड़ने वाले की कितनी वेट थी वो इन दोनों को माइनस कर लेंगे. तो 2250 माइनस 2200.1. सो इट कम्स आउट टू बी 49.9 kg. सो द आंसर इज 49.9 kg. डी ऑप्शन. ऑलराइट. So this is the last question, which says is 65th question, which says is in a mixture of 35 liter, the ratio of milk and water is 4:1. If 7 liter of water is added to the mixture, the ratio of milk and water of the new mixture will be. So ये question जो है mixture and alligation का question है. ठीक है, mixture and alligation का question है. So let us see how to approach this question. तो सबसे पहले हमको क्या दिया है? milk is to water कितना रेशियो है? 4:1. ठीक है. सो नाउ टोटल क्वांटिटी कितना है? टोटल क्वांटिटी कितना दे रखा है? दैट इज 35 लीटर. ठीक है. नाउ मिल्क कितना है? मिल्क इज 4. टोटल पार्ट 4+1 है. टोटल पार्ट 4+1 दैट इज 5. ठीक है, रेशियो में ऐसा होता है. तो मिल्क कितना है? 4 है. टोटल पार्ट 5 में से इंटू 35 लीटर. तो 5 7 जा 28 लीटर. अभी 35 लीटर में से 28 लीटर दूध है. ठीक है. उसके बाद वाटर कितना हो जाएगा? वाटर इज इक्वल टू 35 माइनस 28 दैट कम्स आउट टू बी 7 लीटर. ठीक है, 7 लीटर वाटर है. अभी देखो उन्होंने क्या कहा है? इफ 7 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर. नाउ इफ 7 लीटर इज एडेड कितना हो जाएगा? 7 लीटर मतलब 7 + 7. पहले 7 था, एक और 7 ऐड किया तो 14 लीटर हो जाएगा. 14 लीटर हो जाएगा. अभी उन्होंने पूछा है कि देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज. तो नाउ मिल्क एंड वाटर मतलब मिल्क इज टू वाटर क्या हो जाएगा? मिल्क कितना अपना 28:14. तो 2:1. ऑलराइट. तो आंसर इज 2:1. सो हियर आई फिनिश द क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर फॉर AFCAT 2 2015. ऑलराइट. So see you in next video. Bye bye. So thank you for watching the video till here. I really appreciate it. I hope every question of yours has been solved. I hope to see you in next video. Till then, Jai Hind.